जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते। हो जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते। मैंने देखा तुझे बुला के हर एक तरकीब लगा के, हर उसके को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे उतरे उतरे। हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का। Hi, I'm Armeet. Hi, I'm Anjan. I am Manmeet. We are Meet Bros Anjan. And I'm Khushbu. Okay, sir, so basically this year it's been an awesome year for you guys, and you have given back-to-back hits this year. So we would like to what are the new projects that are coming up with you guys? Are you four guys coming together in some song again, or anything that kind of stuff? A lot of stuff is coming up, and we've been working round the clock in the past few months, and we're enjoying what we're doing. And of course, with Khushbu, we have 3-4 more songs coming up. She's a part of a band. She's the lead singer of our band, and as far as Meet Bros Anjan are concerned, and there are about 13-14 odd films that we are working simultaneously on. So मजा आ रहा है, super fun चल रहा है. And this year again, like it was all the hit movies, whether it be Bhootnath Returns, whether it be Kick, whether it be Boss, everywhere it was Meet Brothers, whether it be Hate Story 2, and Khushbu ma'am is rocking everywhere. So how was it working with all the directors and co-stars and everyone? I think it happened on its own. It was magic by God that timing कहते हैं ना, जैसे कभी कभार perfect हो जाती है. तो back to back offers आए, back to back releases भी हुई, and we were giving our best right from the beginning. But कभी कभार क्या होता है, जब समय बदलता है तो पार्टी के गाने आपको मिलते हैं करने को. So we were doing songs like मेरे निशान, जो कि एक बहुत soulful गाना था, और तेरी शर्ट का बटन एक रोमांटिक गाना था क्या सुपर कूल में. लेकिन we were always praying कि भाई कब हमें पार्टी गाने मिलेंगे, and then एकदम से ऐसा हुआ कि back to back पार्टी गाने मिले, and they all became hit also. तो we are just trying our best, putting in 100%, but सब producers directors का support मिला, and everybody was very nice to us. They let us do what we wanted to do, and still our best is yet to come. According to the surveys, सबसे ज़्यादा song जो ये साल hit हुआ था, that one was Boss and other was Baby Doll. So basically अगर अपने फैंस के लिए थोड़े वो गाने से कुछ 2 लाइनें हो जाए आपकी तरफ से. चलो खुशबू गा दो बेबी डॉल. ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी. ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी. सोने सोने पटोले लखा, सोने सोने पटोले, ए तक दिया रहंदियां अखां, ए तक दिया रहंदियां. मैं की दसां अपनी वे, ए चन करदा है तारीफां, मेरे हुस्न दे कोने 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 दी, ओ कोने कोने दी. ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी. बॉस है हुकुम का इक्का, बॉस है लाखों का सिक्का, बॉस हर जगह पे लिखा, बॉस है बॉस है बॉस है बॉस है बॉस. 6 पैक का शहंशाह बॉस, बस ब्रांड पहनता बॉस, एटीट्यूड से बनता बॉस, बॉस बॉस. You have worked with each and every superstar this year. You have worked with Salman, you have worked with Akshay, you have worked with Amitabh Bachchan ji, everyone. अभी हमारी सिंघम भी आई थी जिसमें अजय देवगन and करीना कपूर was there. So yeah, we've been very lucky. Yeah, that song was also Singham का जो title track था. It was also really a good song, and actually it went on blockbusters. So now any new films that you're working, anything with more big superstars like Shah Rukh, Ranbir or anyone, you are coming up with some songs? देखिए ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अभी आज की डेट में प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने ऐसे भयंकर एग्रीमेंट्स बनवाए हैं कि जब तक वो अनाउंस नहीं करते हम सामने से नहीं बोल सकते हम लोग. बट ये जरूर बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छा म्यूजिक आई थिंक आ रहा है, एंड कुछ इसमें बहुत बड़ी स्टार्स भी हैं और कुछ न्यू कमर्स भी हैं.
what we do is that we just make good music and we feel कि हम script अगर हमें अच्छी लगती है और हमें लगता है कि फिल्म अच्छी है तो then हम script को देख के और उसको देख के हम म्यूजिक बनाते हैं. We are more focused on the content of the film because अगर content अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता है. So बाकी तो stars तो किस्मत से आते हैं. बाकी ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप म्यूजिक एक छोटी फिल्म को भी अच्छा देते हैं, जैसे बेबी डॉल, hit stories are small films but Pink Lips and Baby Doll both have done well for us. So I don't feel कि good music एक बहुत बड़ी फिल्म का मोहताज है. अच्छा म्यूजिक अगर होता है तो वो अच्छा निकलता ही है. People like it. बल्कि हमें खुशी होती है कि हमारे गानों से अगर कोई स्टार बनता है या वो और फेमस होता है, समझो ऑलरेडी कोई स्टार है तो लाइक सनी वाज ऑब्वियसली ऑलवेज अ स्टार एंड वेरी पॉपुलर, बट ये इंडस्ट्री सब कहते हैं कि बेबी डॉल के बाद उनकी वो स्टारडम को और चार चांद लगे, तो हमें उसमें ज़्यादा खुशी होती है. वो ऑलरेडी स्टार है और उसके ऊपर एक हमारा गाना आता है तो शायद हमारे गाने का वो मैजिक इतना नहीं पता लगता, तो वी आर हैप्पी बोथ वेज. अभी पिंक लिप्स आपका गाना भी सनी लियोन के साथ था एंड इट वाज आल्सो रियली अ ग्रेट सुपर हिट. तो थोड़ी एक असली आवाज में थोड़ा सबके लिए हो जाए पिंक लिप्स. होठों पे बेईमानियां कर ले थोड़ी नादानियां, होठों पे मनमानियां कर ले थोड़ी नादानियां. मुझे आधी रात को सताने लगे, मुझे अपने साथ तड़पाने लगे, तू आजा पास ये बुलाने लगे, तुझे छूना चाहे मेरे पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स अब तुझको करते मिस. पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स पिंक लिप्स Pink lips, pink lips, I know you want my baby lips. Oh hello बोल के बेबी लिप्स खोल के हरकत न करे नाड़ियाँ. Listening then no hold it, love you मैनू बोल दे, अदावा तेरी है निहारियाँ. Yeah, and even like this year we are expecting there are going to be many shows coming up. Are any shows coming up in Mumbai basically, because we have a lot of fans that are asking for this. You are coming up with any shows or concerts or anything in Mumbai? There's some very good, interesting things coming up, and in fact, Provoke Nights जो शुरू हुई हैं बॉम्बे में. We're planning a good concert at the Hard Rock Cafe in the coming months, but it's going to take some time because we're very busy with our music making right now, and that's our prime focus right now. So हम वही gigs लेते हैं जो हमको बहुत appeal करती हैं, बहुत interesting लगती हैं, because we are basically performers. We've always been performing since our childhood, and we love to go on stage and rock. In fact अंजन और हम लोग तो मिले ही थे स्टेज पे कानपुर में. वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी लाइव शोज. इतने सारे हिट्स ये साल हुए, उसमें से कोई एक ऐसा स्पेशल गाना आप लोग के लिए जो एक्चुअल में याद रहे, या कोई स्पेशल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहे गाने के टाइम की? जब हमारा गाना हमें कॉल आया कि भूतनाथ फिल्म बन रही है और शूटिंग प्लान हो गई थी, उनके पास गाना नहीं था. बोला 4 दिन में शूटिंग है, बच्चन साहब की डेट्स हमारे पास, गाना नहीं है हमारे पास. तो एक मोमेंट जो आया था हमारी लाइफ में, जब हम छोटे शहर से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो बच्चन साहब को देख के फिल्में हमें अच्छी लगनी शुरू होती हैं, जिसकी वजह से आपको बॉलीवुड अच्छा लगता है. हम उस एरा से हम लोग आ रहे हैं फिल्म बच्चन साहब को देखते हुए. तो जब पता लगा कि उनकी फिल्म है और गाना एक बना के उन्हीं को जाके सुनाना है, तो वो मोमेंट हमारे लिए बड़ा खास था. अंजन की तो आंखों में आंसू आ गए. नहीं, जिनकी पिक्चर देखने के लिए लाइनों में खड़े रहते थे, डंडे खाए कॉलेज में, तो उनके लिए गाना बनाना बहुत एक बड़ी बात थी और हम लोग बहुत खुश थे तीनों. और वो मोमेंट हम भूल नहीं सकते. हम मीत ब्रोस अंजन के करियर में जब हम वैन में उनको गाना सुनाने गए थे और उन्होंने सर पे एक कैप लगाई हुई थी, ऐसी मंकी कैप, उसने बहुत क्यूट लग रहे थे. अमित जी वाज लाइक एंग्री यंग मैन, बड़े क्यूट से बैठे हुए थे और ऐसे बैठे हुए थे. हम तो सुनाइए, फिर बोल के ऐसे नीचे देखने लगे. फिर हमने गाना सुनाया तो पहाड़ी तो बनती है, पा 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 पहाड़ी तो बनती है, पा 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 पा, और खत्म हुआ तो ऐसे देखते हैं, तो फिर डायरेक्टर की तरफ देखते पहले, क्या बोलते हैं. तो डायरेक्टर ने कहा सर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. नहीं अच्छा है, एक काम करिए आप एक सीडी पे दे दीजिए मुझे, मैं सुन के जो है फिर बताता. तो हमारे दिल की धड़कन ऐसे हो रही थी. बट द फैक्ट कि एक 4 डोर्स में बैठ के उन्होंने हमारे साथ जैमिंग करी और उन्होंने अपने कमेंट्स दिए और पूछा, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था. It's like you become colleagues with him when working. But I want to know, were you all nervous singing in front of Amit ji for the first time? When you become blank. We all went to Dullu Boy ke karke.
मनमीत तो 4 दिन तक नहीं लेना, लेकिन मैं तो ब्लैंक हो गया था बिकॉज मैं तो उनको लिटरल सेंस में सबसे बड़ा फैन हूँ उनका। तो मेरे लिए तो सब पिक्चरों के फ्लैशेस आ रहे थे। Oh my God. रिश्ते में तुम्हें बाप मेरे को आवाजें आ रही थी, डायलॉग्स कान में गूंज रहे थे, वो शांति में बैठे हुए थे और कान में जोर जोर से वो डायलॉग्स गूंज रहे थे। ऐसे मोमेंट जब आते हैं आपकी लाइफ में तो उस वक्त ऐसा लगता है कि क्या ये वाकई में हो रहा है, मतलब इट्स सो सरियल दैट आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आप जब हम स्कूल में थे, जब उनकी फिल्म्स देखते थे, जैसे रंजन ने बहुत डंडे खाए हैं, बहुत बड़ा फिल्मी कीड़ा है, पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला है शुरू से, तो वो जब देखने जा रहे थे कभी सोचा भी नहीं था कि यार कि हम म्यूजिक बनाएंगे और वो बच्चन साहब हमारी आवाज़ पे और हमारी बातों पे रैप करेंगे, कि हम रैप, मतलब ये सब ड्रीम्स के सभी ऊपर की बातें होती हैं। तो एकदम से कैसे जैसे मतलब लिटरली जिस तरीके से एग्जांपल देने के लिए अगर कृष्ण जी को आप पूछते हो और एकदम से कृष्ण जी सामने आ गए तो आप ब्लैंक हो जाओगे, चक्कर आ जाएंगे। तो वो वाला हाल था कि एक्चुअली यही है अमित जी। या ही इज फॉर ऑल अस एंड मतलब हिंदुस्तान के लिए तो गॉड ऑफ सिनेमा वही रहे हैं, क्योंकि सिनेमा अच्छा ही उनकी वजह से, जो फिल्म इंडस्ट्री को अच्छे से जानता है वो ये जानता है कि अमित जी जो कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, कभी कभी जैसे पिक्चर और नटवर लाल और जो पिक्चरों में वैसे दिए, सीरियस फिल्म्स, शहनशाह, विलन जैसे उसमें प्यार में किस मोड़ पे ले आए वो जो फिल्म थी अग्निपथ, सत्ते पे सत्ता, उसमें एक में हीरो बन रहे हैं, एक में विलन बन रहे हैं, कौन कर पाता है। और मतलब शॉर्ट परफॉर्मेंस, उसमें ऐसा नहीं कि कहीं कमी रह गई। मोस्ट वर्सेटाइल वी हैव एवर सीन। मैंने हॉलीवुड में भी कहीं इतना वर्सेटाइल एक्टर नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा जो इतना रोमांस एंड एक्शन बोथ कर ले। सर अपने फैंस के लिए कोई एक मैसेज और एक आखिर में एक गाना दिल से दिया हुआ, कुछ दिल में क्या आ रहा है अंजन बताओ कि क्या दिल में ये आ रहा है कि हम तीनों के गाने आप लोग इसी तरह सुनते रहें और हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे गाने आप लोगों के लिए बनाते रहें। और हमें मीत ब्रोस अंजन हमारा जो पेज है और मीत ब्रोस द बैंड हमारा पेज है फेसबुक का, उसमें हमें अपना प्यार देते रहिए एंड जब जितना आप हमें वहाँ प्यार देंगे हम उतना ही आपको रिप्लाई करेंगे और आपसे कनेक्टेड रहेंगे। लव यू ऑल, लव यू। हमसे ना ऐसे वैसे अकड़ो, ओहो ऑर्डर जनहित में जारी रे 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 अपनी लिमिट में रहे, ओ हेलो हेलो अब तो है अपनी बारी रे, लिटिल बिट झटका जिसे दिया वो लटका, फेमस होने लगी अपनी पागल बनती रे, पहाड़ी तो पहाड़ी तो पहाड़ी तो किसी बात पे पहाड़ी तो बनती है, पहाड़ी तो बनती है, पहाड़ी तो बनती है, पहाड़ी तो बनती है। मीत ब्रोस अंजन की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि बॉम्बे बजर जो ऑनलाइन मीडिया है उसको हमारा फुल सपोर्ट है, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वो हमारे जितने भी गाने, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी जो मेहनत है वो आप तक लाते हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर सपोर्टिंग देम, वी गोइंग ऑल आउट।